Good afternoon, all of you. This is your course instructor, Kushwant Patnani, and we are starting with the test discussion session for units and measurement. Before we do, let us join together for prayer and meditation. So, request all of you to please join your hands, close your eyes. One by one, all of us will take deep breaths in and out. Eyes closed, smile on the face. Take a deep breath in and breathe out. Once again, breathe in and breathe out. Every incoming breath energizes the body. Every outgoing breath relaxes the mind. Once more, let the smile on the face be there. Take a deep breath in and a deep breath out. We'll pray. Dear God, we are your children. Thank you for such good health, wealth, and wisdom. Thank you for the love and support, respect, and motivation we receive from our family, friends, and mentors. Dear God, thank you for the dream for our lives you have set in our heart. Thank you that you're giving me the strength and wisdom to attain it, to make my dream come true. I thank you in advance that I have cleared JEE Advanced 2022, NEET Examination 2022 in flying colors and have got admission into my dream college. Dear God, thank you in advance for becoming a great doctor, a great engineer. With this smile on the face, let us open our eyes. So, yeah, yes बच्चा लोग. तो हम लोगों ने ये दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, राइट? This one was where radius of the balloon was changing, right? We had to find out what is the percentage change in volume. This was one question. Then next one we solved was finding out a special quality of question where A and B had to be found out and dimension of M had to be told in the formula of AB. ठीक है. Okay. Mahevish, can you read the next question, bacha? Okay. I think Mahevish is facing some network issue. कोई बात नहीं. Rahul. Yes, Rahul bacha. A vernier calipers. पढ़ो.
Yes, Rahul, you there, बच्चा? Okay, let's take it from Viraj then. Viraj, बच्चा आवाज आ रही है? All right. मेरी आवाज अब क्लियर है सबको? If yes, बच्चा लोग please raise your hand. Yes. If my voice is clear now, request you all to raise your hands. Yes, बच्चा लोग. Right. So I believe everyone is able to now listen to me clearly. All right. Rahul, is my voice clear? Rahul, is my voice clear, बच्चा? I think Rahul is facing some issue. कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं. Everyone can bring their hands down. Thank you, Veeraj. हाँ Veeraj बच्चा. So try answering or try first reading the next question, the one with vernier calipers concept. Yes बच्चा, पढ़ो. तो क्वेश्चन कहता है, Veeraj, can you hear me? Okay, it seems there is some issue at everybody's end. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग, तो I'll read out this question. Question says एक वर्नियर कैलिपर्स हैं जिसमें 20 डिविजन्स हैं, ठीक है? मतलब VSD कितने दिए हुए हैं? 20, है ना? और लिखता है कि ये 20 डिविजन्स, ये 20 VSD कोइंसाइड करते हैं with 15 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल. ठीक है भाई, 20 VSD 15 MSD के साथ कोइंसाइड करते हैं. लिखता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग द मेन स्केल इज 2 mm. मतलब एक मेन स्केल डिवीजन से आप 2 mm का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, अब अगला लिखता है, आप बताइए दैट द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट व्हिच कैन बी मेड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर सेटअप. राइट, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेजर किया जा सके वर्नियर कैलिपर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप ली जा सके उसको क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट. तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट काउंट. क्लास रिकॉल करो, हमने सीखा है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD. हमने क्या सीखा है? 1 MSD माइनस 1 VSD. राइट, राइट, 1 MSD माइनस 1 VSD. अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कुछ निकालना पड़ेगा. क्या क्या यहां से सोल्यूशन ले सकते हैं? हमारे पास, हम लिख सकते हैं अगर 20 VSD का मतलब है 15 MSD, तो वी कैन राइट दैट 1 VSD is equal to 15 by 20 MSD. 15 by 20 MSD. करेक्ट, करेक्ट. तो उसको यहां पर लिख लेते हैं. राइट, तो 1 MSD, तो 1 माइनस, तो 1 MSD माइनस VSD की जगह क्या लिख लेते हैं? 15 by 20 MSD लिख लो. ठीक है, अच्छा, अब क्या हो जाएगा? ये 5 बाई, सॉरी, या 5 बाई 20 MSD. राइट, अब क्वेश्चन क्या लिखता है क्लास? देखो, एक MSD में कितने mm आ जाते हैं? 2 mm, हाँ या ना? तो इसको बस डाल दो, 5 बाई 20 इंटू 2 इंटू 2 mm. राइट, तो क्या हो जाएगा आंसर? 5 बाई 10 mm. राइट, 5 बाई 10 mm. Just let me read. Is it 2 mm given? Just a second. Give me a second, class. Just a second, right? Just a minute.
Okay, great. So I think then in that case the answer which is marked in the PDF is incorrect. The answer for this question will be equal to 0.5 mm. 0.5 mm. So option number 2 will be correct. You can correct the answer, class. You can correct the answer. The option will be 0.5 mm. Right? ठीक है. अच्छा, next. ये क्वेश्चन क्लियर है? सर क्वेश्चन क्लियर है? सर एक मिनट हेलो सर एक मिनट बच्चा, एक मिनट. क्लास, if this question is clear to you all, please raise your hand. If this question is clear to you all, please raise your hand. एक मिनट चैतन्य बच्चा, giving you chance. Class, if the question is clear, if the approach is clear, please raise your hand. Okay, एक एक करके डाउट लेते हैं, डोंट वरी. हाँ, कुशल बोलो बच्चा. अच्छा, कुशल को भी क्लियर है. हाँ चैतन्य, पूछो बच्चा, पूछो. So unmuting you. हाँ बच्चा, बोलो. Sir, it should be 1.5 only because in the top it's 15/20. देखो ना यहाँ पे बच्चा, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन देखो क्या होती है. 1 MSD minus 1 VSD. तो क्या हो जाएगा? अरे yes sir, sorry sir. हुआ I क्लियर? didn't see that. हुआ क्लियर? Yes sir. Yes sir. All right. बच्चा लोग, सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए. थैंक यू. The answer will be 0.5 mm, right? ठीक है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो सभी लोग क्या लिखता है. क्वेश्चन लिखता है x is equal to 2.5 into 3, right? And y is equal to just a second. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या लिखता है कि आपके पास x की वैल्यू है 2.5 into 3 और y की वैल्यू है 2.5 plus 3.00. ठीक है. So let us take one of you. Let us take one of you, कुशल. ठीक है, कुशल को लेते हैं. कुशल, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है that if the number of significant figures in the answer, जो भी x की वैल्यू है उसमें अगर number of significant figures a है, right? और b में जो भी आता है, जो भी वैल्यू आती है y की, अगर उसमें number of significant figures b है, right? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई बताओ a plus b की क्या वैल्यू है. a plus b क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन x एंड y. ओके, और दिशा पहले एक मिनट, आई थिंक दिशा को कुछ डाउट है, डाउट ले लेते हैं. हाँ दिशा बच्चा, एनीथिंग? ओके, आई थिंक दिशा हैज ब्रॉट हर हैंड डाउन. ओके, ठीक है. ऑलराइट. हाँ कुशल बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रोच बताओ बच्चा. ओके, इट सीम्स आज काफी बच्चों के घर पे आ रहा है ऐसा. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आयुष, कैन यू हियर मी? आयुष बच्चा, इफ यस आप ट्राई करो बच्चा. यस सर. हाँ, ट्राई करो बच्चा. कैसे होना चाहिए? वर यू देयर इन द क्लास आयुष जब वी हैड टेकन अप सिग्निफिकेंट फिगर्स? यस सर, मैं था. ओके, ठीक है. हाँ, ट्राई करो बच्चा. सर x को पहले जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले डिजिट वाले कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं पहले वाले में? इसमें कितने हैं? 2 है. ठीक है. 3 में कितने हैं? 1 है. 7.5 में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए? लीस्ट ऑफ 1 एंड 2. ओके, लीस्ट ऑफ 1 एंड 2, करेक्ट. इन दोनों में से जो लीस्ट है उतने होने चाहिए, राइट? तो हैं 2 बट बनाने कितने हैं? 1. ठीक है, तो क्या करोगे इसको आयुष?
राउंड ऑफ करेंगे सर। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला 5 हटा देंगे, ठीक है, हटा देते यस हैं। सर। तो इसके पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है? ऑड है सर, तो Odd है। 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड कर दो, 1 डिजिट ऐड करो, कितना हो जाएगा बोलो? 8, 8। हाँ या ना? अच्छा, अब 8 आ यस गया, सर। तो अब अगर 8 आ गया तो 8 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1। 1, तो एक की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे? सर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो लीस्ट डेसिमल पॉइंट वाले को कंसिडर करेंगे आंसर में। ठीक है, तो यहाँ इसमें लीस्ट, इसमें डेसिमल पॉइंट कितना है? 1, हाँ या ना? 1। ठीक है। यस सर। ऊपर वाले जब मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिया, और जब यहाँ पर डेसिमल प्लेस देख रहे हैं तो लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं, तो यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ डेसिमल प्लेस 2 है, राइट। यहाँ कितनी डेसिमल प्लेस है आयुष? 2 2 है राइट, सर। और होनी कितनी चाहिए? 1। 1, तो इसका मतलब किसको हटाना पड़ेगा? 0 को। 0 को हटा देते हैं। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना है? नहीं सर। ओके, तो अब बताओ इसमें कितनी डेसिमल प्लेस रह गई? लीस्ट ऑफ द टू, हाँ या ना? यस सर। दैट इज 1, राइट, ठीक है। तो बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। कितने? अब 7.5 में 2, 2। ठीक है। तो अब अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 7.5 इज 2, तो बताओ a प्लस b का सम कितना होगा? बोलो बच्चा। 3। 3, तो आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या फिर 3। क्लियर है क्या आयुष? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ऑल राइट बच्चा। नेक्स्ट वन, सो तेजस, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ओरिजिनली 200 वॉट्स वाला। यस तेजस, गो अहेड। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल अनम्यूट यू। सो यस बच्चा पढ़ो। Originally, 200 watt of power is generated in a wire. Power P generated in a wire depends on potential difference and resistance as P is equal to V square by R. ठीक If है, resistance increases by 0.5% ठीक and है, potential difference decreases by 1%, the change in power is. ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लास मेरी आवाज कुछ सॉरी तेजस बच्चा, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है या इज देयर एनी इशू विथ माय वॉइस राइट नाउ करेंटली? No, sir. क्लियर है एकदम? Yes, sir. ओके, सो चैतन्य, आई बिलीव कि आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू आ रहा है बच्चा, जिसकी वजह से आपको ऐसा दिक्कत हो रही है। तो प्लीज वर्क करो, इन केस आपके नेटवर्क पे कुछ सुधार हो सकता है, सो प्लीज वर्क ऑन दैट, या फिर कोई नेटवर्क अगर चेंज कर सकते हो बच्चा तो उस पर प्लीज वर्क, राइट। या फिर दिस वीडियो विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू राइट ऑनलाइन ऑन अ स्पेशल एक्सेस, तो आप वहां से देखिए, और कहीं दिक्कत होता है तो मुझसे पूछ लो, ऑलवेज देयर। ओके, तो तेजस, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो 0.5% से बढ़ जा रहा है, राइट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1% से घट जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, इससे हमको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए क्या, कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, राइट, और न्यूमरेटर घट रहा है, तो ओवरऑल इस फ्रैक्शन को क्या करना चाहिए? कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? पता नहीं सर। कम होना चाहिए, राइट, ठीक है, एक्सेलेंट। अब बच्चा आगे बोलो, आगे कैसे सॉल्व करोगे? क्या लिखता है क्वेश्चन में? कैसे रिलेट करोगे परसेंटेज चेंज को विथ वी एन आर? बोलो। वो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा पी हाँ, बाय पी। डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू, बोलो, डेल 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। प्लस डेल्टा आर बाय। बताओ ये चेंज है कि एरर है? एरर है।
ये नहीं चेंज है बच्चा। चेंज है सॉरी चेंज है हाँ हाँ तो यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस कि प्लस आना चाहिए। श्योर हो? जो भी बोलो उसमें श्योर रहो। क्या आएगा बच्चा, माइनस या प्लस? माइनस माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वैल्यूज डायरेक्टली भी डाल सकते हो या हर तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, हर तरफ 100 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या हो गया, पहले अपन ने फ्रैक्शनल चेंज के टर्म्स में आंसर लिखा था, अब ये इक्वेशन किसके टर्म्स में हो गई, परसेंटेज चेंज। किसके टर्म्स में हो गई तेजस? परसेंटेज चेंज। वेरी गुड बच्चा। तो अब क्या करेंगे इसमें, बोलो वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, मतलब परसेंटेज चेंज की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, बोलो बोलो। 2 टाइम्स ऑफ 1%, क्या हुआ है, फॉल हुआ है, तो -1% लिख सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और रेजिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस की साइन तो है ही, ये माइनस की साइन तो थी ही, इसको बरकरार रखेंगे, यहाँ माइनस की साइन को बरकरार रखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रेजिस्टेंस 0.5% प्लस से बड़ा है, 0.5 तो 10 का 10 प्लस 0.5% सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -2 -2 -0.5 आया ना, -3 यस सर तो ये क्या हो जाएगा, -2.5% आया ना। यस सर ठीक है, तो अब देखो बच्चा लोग, अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तेजस पढ़ के बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट लाइन फिर से पढ़ो। चेंज इन पावर। हाँ, कि पावर कितने से चेंज हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास आया कि डेल्टा पी, हमारे पास क्या आया बच्चा लोग, बहुत सिंपल है, देखो डेल्टा पी बाय पी, राइट, इंटू 100 किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है बच्चा लोग, -2.5 के, हाँ या ना तेजस, हाँ या ना। तो अब क्या करोगे, इस 100 को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू -2.5 बाई 100, इसीलिए तो उसको परसेंटेज कहते हैं ना, हर 100 पर कितने से पावर घटा, करेक्ट। ठीक है, अब आपको निकालना है चेंज इन पावर, मतलब डेल्टा पी, राइट, चेंज इन पावर। यस सर मेरे पास क्वेश्चन में तो पी क्या दिया है क्या हुआ है, 200 कितना दिया है, पढ़ो, 200 200, कितना हो जाएगा बताओ, ये 2 200 into डाल दिया 2 तो क्या हो गया, so माइनस 5 -5%। -5 वॉट्स की पावर में कितने का, हाँ सॉरी है ना, पावर में कितने की गिरावट आई, -5 वॉट से, या 5 वॉट से पावर घट गया, 5 वॉट से पावर कम हो गया, हाँ या ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस बोलो, 5 पावर decreased डिक्रीजेस by बाय 5 पावर डिक्रीजेस बाय 5 वॉट्स, क्लियर है, यस सर अच्छे से एकदम समझाओ सबको, एक क्विक 1 मिनट समरी दो इस क्वेश्चन की यहाँ से, यस बोलो। हमें दिया था पावर 200 वॉट है और पावर की इक्वेशन दी हुई है दैट इज v²/r और ये दिया हुआ है कि v डिक्रीज हो रहा है बाय 1% और r इंक्रीज हो रहा है बाय 0.5%। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया परसेंटेज या चेंज फॉर्मूला में माइनस क्यों आ रहा है, आप तो प्लस बोल रहे थे, माइनस क्यों आ रहा है, समझाओ सबको। क्योंकि वो चेंज है एरर में हमेशा प्लस होता है और चेंज में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हाँ, डिनोमिनेटर। अगर कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो उसका फ्रैक्शनल चेंज वाला जो फॉर्मूला है उसमें माइनस आता है, अगर आप चेंज की बात कर रहे हो, अगर एरर की बात कर रहे हो, खासकर कौन से एरर की, मैक्सिमम एरर की, तो वो कहाँ आता है, न्यूमरेट, मतलब वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे बोलो बच्चा, समझाओ सबको। फिर उसके बाद हम दिया है कि वी विल वी 1% से कम हो रहा है तो इसलिए इसको नेगेटिव लिए क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है और आर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए उसको पॉजिटिव लिए फॉर्मूला में रखे तो हमारे पास आ गया -2.5%। तो फिर हमारे पास LHS में डेल्टा P बाय P इज इक्वल टू -2.5% और हमें निकालना है डेल्टा P की वैल्यू तो हम उसको ट्रांसपोज कर दिए फिर सॉल्व कर लिए और फिर आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके,
ओके क्लास, अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, रेज योर हैंड. If this question is clear to all of you, please raise your hand. Right? ठीक है. कार्तिकेय बच्चा, is the question clear to you बच्चा? If not, let me know. Yes बच्चा, बोलो, पूछो. Something you want to ask? Yes बच्चा, बोलो. Okay, okay, it's clear. ठीक है. अब क्लास अगला क्वेश्चन क्या था? I think we'll take one student only जिसका भी नेटवर्क आज काम कर रहा है. So let's take Ayush. I think Ayush ने ये टॉपिक हमारे साथ नहीं किया है. But then I think आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है सभी ने. ठीक है. Let us take दिशा. ठीक है. दिशा पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ो. I am unmuting you बच्चा. Yes. पढ़ो क्वेश्चन. सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन पढ़ो. बोनस क्वेश्चन पढ़ो. Surface tension is defined as force acting per unit length. ठीक है. If force F, time t, velocity v are taken as fundamental units, then in the dimensional formula of surface tension, the dimension of t is. ठीक है. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बच्चा, बताओ. पहले अप्रोच बताओ सबको. हाँ बच्चा बोलो. हम क्या करेंगे, याद करो. हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं क्या दिशा बच्चा क्लास में? हाँ, कैसे करते हैं बताओ. सरफेस टेंशन का mlt के फॉर्म में निकालेंगे. ओके, वेरी गुड बच्चा. बताओ कैसे निकालोगे. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला दिया है क्या? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट. ठीक है. फोर्स का जानते हो डायमेंशन क्या होता है बच्चा, बोलो. mlt -2. वेरी गुड. अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, लेंथ. हाँ या ना? ठीक है. तो सरफेस टेंशन कैसा हो जाएगा बच्चा, mt -2. करेक्ट. ठीक है. अब यहाँ से इन सब के डायमेंशन जानते हो क्या बच्चा, बोलो. mlt -2 पावर a t पावर b. हाँ या ना? और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, lt -1. राइट. करेक्ट. ठीक है. अब बताओ आगे क्या करोगे, कैसे निकालोगे ए बी सी की वैल्यू. सारे पावर्स को ऐड कर दोगे. हाँ या ना? करो, ऐड करो. कितना होता है बोलो. L का पावर क्या आ जाएगा, a प्लस सी. T का पावर क्या हो जाएगा, -2a प्लस b माइनस सी. हाँ या ना? आवाज आ रही है बच्चा? हाँ आ रही है. हाँ बच्चा, आगे बोलो. फिर बोलो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप बोलो. सबके रिस्पेक्टिव पावर्स को इक्वेट करेंगे. हाँ या ना? तो एक a की क्या वैल्यू आ गई, 1. राइट. उसी तरह से L के पावर में क्या आ रहा है, एक तरफ 0 आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, a प्लस सी. तो a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 0 के. हाँ या ना? और उसी तरह से t के पावर में एक तरफ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, -2a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू -2. हाँ या ना बच्चा? ठीक है. अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. करो, सॉल्व करो. एक a क्या आ जाएगा, 1. फिर यहां से सेकेंड वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू -a. हाँ या ना? ठीक है. तो c की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1. राइट बच्चा? ठीक है. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. -2 इंटू a कैसा हो जाएगा, 1 प्लस b माइनस ऑफ -c मतलब +1 इज इक्वल टू -2. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा, b -1 इज इक्वल टू -2. b इज इक्वल टू -1. हाँ या ना? क्लियर है क्या बच्चा? ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट करोगे जब इस फॉर्मूला में,
तो आंसर क्या निकल के आएगा, बोलो आंसर क्या निकल के आएगा? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पावर 1 इंटू टाइम पावर -1 इंटू वेलोसिटी पावर -1। आया ना? ठीक है, तो वो डाल दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन देखो क्या लिखता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन में टाइम का डायमेंशन क्या है? बताओ टाइम का डायमेंशन क्या आ रहा है इस फॉर्मूला में, बोलो। -1। वेरी गुड बच्चा, क्लियर हुआ अच्छे से दिशा बच्चा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के फाइनल टेस्ट में, तो कर लोगे? हाँ। ठीक है, गुड 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 बच्चा। क्लास जिसको क्लियर है रेज योर हैंड। यस बच्चा लोग, जिसको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमने क्या किया, पहले सबसे पहले सरफेस टेंशन को इक्वेट किया विथ फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के साथ, पावर में ए बी सी लेकर सॉल्व किया और रिस्पेक्टिव डायमेंशंस को इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकाला। ठीक है, अगर ये क्लियर है आपको तो हैंड रेज करो बच्चा लोग। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो आई कैन सी कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बस अब जो करनी है वो प्रैक्टिस है ना? जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो अगले पेपर में मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। सो वी विल टेक एनी वन ऑफ यू जिसका माइक काम कर रहा हो। आयुष, आयुष बच्चा क्वेश्चन पढ़ो तो। Yes, sir. हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Mass of a spherical body is reported as 20 ± 0.2 kg. ठीक है, Its density is reported as 100 ± 1 kg per cubic meter. ठीक है, एक मिनट sir. If the mean absolute error reported in its radius is 4/3 centimeter, ठीक है, the value of radius in centimeter reported is. ओके आई थिंक इसमें देयर इज वन एरर। यहाँ पर वी विल हैव द इन द क्वेश्चन, जो यहाँ पर एक सेकंड, जो यहाँ पर दिया है ना जैसे सेंटीमीटर क्यूब, बाकी एवरीथिंग इज ओके। हाँ ठीक है, तो बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन, या फिर आप लोग चाहो तो सबको एक यूनिट में ले लो, राइट? सबको एक यूनिट में ले लो। सो आई एम टेकिंग दिस वन इन केजी पर मीटर क्यूब, दिस वन इन मीटर। ठीक है, इस हिसाब से जो अभी हमने यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि डेल्टा आर क्वेश्चन में दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर, आपसे आर पूछा जा रहा है। ओके आयुष, कोई आइडिया ये क्वेश्चन कैसे लगना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सर पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। आगे क्या कर सकते हो? वॉल्यूम क्या होती है एक स्फीयर की इन टर्म्स ऑफ रेडियस, बोलो। 4/3 पाया क्यूब। बस जैसे ये लिखा तो सोल्यूशन तो बन गया। क्या करेंगे अब? आर को दूसरी तरफ ले जाओ, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब इज इक्वल टू एम बाय रो, राइट? अच्छा, अब एरर की बात हो रही है या चेंज की बात हो रही है आयुष? सर मीन एब्सोल्यूट एरर है दिया हुआ, चेंज नहीं दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर दिया। राइट, तो क्योंकि यहाँ पे एरर की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में वी विल राइट आर, यहाँ पर 4/3 पाई को या 4π/3 को अपन कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे के, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे के। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? आर क्यूब इज नाउ इक्वल टू एम बाय रो इंटू के, राइट? अब मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू एम बाय रो, राइट, होल का पावर 1/3 इंटू सम कांस्टेंट के नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? यस सर। तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा 1/3 डेल्टा रो बाय रो। लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्यों लिख सकते हैं बताओ?
यहाँ माइनस की साइन क्यों सर नहीं आ रही है? नीचे है ना सर ये हम लोग एरर की minus बात में। कर रहे हैं, चेंज की नहीं, इसलिए। क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम एरर या एरर की बात कर रहे हैं, चेंज की नहीं। ठीक है, आगे क्या होगा बोलो। सर फिर सबकी वैल्यू डाल देंगे, हो गया। ठीक है, अब बोलो क्या क्या वैल्यूज दी है, डेल्टा एम की वैल्यू बोलो। डेल्टा एम की वैल्यू 0.2 है। अच्छा ठीक है, यहाँ से 0.2 by क्वेश्चन। 20। ठीक है बच्चा, ग्रेट, एक्सेलेंट बच्चा, आई थिंक आप कर लोगे, ग्रेट। तो अब यहाँ से लेट अस टेक, थैंक यू बच्चा, तो लेट अस टेक चैतन्य। हाँ बच्चा बोलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बोलो एम की क्या वैल्यू होगी, 20, राइट? यस सर। ठीक है, फिर डेल्टा रो की वैल्यू बताओ, कितना दिया हुआ है डेल्टा रो? सर डेल्टा सर एक मिनट से मैं क्वेश्चन फिर से खोल रहा हूँ, स्क्रीन बंद हो यहाँ गया था। यहाँ लिखा हुआ है बच्चा, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा रो, बोलो कितना है, 1, कितना है बच्चा, 1 1। सर 1। ठीक है, अच्छा अब रो कितना दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी दी है, पढ़ के बोलो, 100, हाँ या ना? 100 यस सर, 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अब आंसर निकल सकता है? यस सर। ठीक है, किसका आंसर निकल सकता है, डेल्टा आर बाय आर। लेकिन अगर मुझे डेल्टा आर निकालना है तो आर कहाँ जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। तो यस क्वेश्चन सर। क्वेश्चन में हमको एक्चुअली इनफैक्ट पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, जहां पे डेल्टा आर दिया हुआ है, मतलब हमें डेल्टा आर दिया है, माफ करना, वी हैव बीन गिवन विद डेल्टा आर, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस, कितना दिया है डेल्टा आर, 4/3। तो डेल्टा आर की जगह क्या यस लिख सर, लेते हैं, 4/3 लिख लेते हैं, क्या लिख 4/3। 4/3 4/3 ऑन आर। और यहाँ क्या हो जाएगा दूसरी साइड पर, 1/3 टाइम्स ऑफ 2/200 2 बाय 200 1/100, है या ना? प्लस 1/100। यस ठीक है, सर। अच्छा अब हमारे पास दूसरी साइड पे क्या है, 4/3 है, 4/3 है, यस तो सर। 3 और 3 कैंसिल हो यस जाएगा, सर। हाँ या ना? यस सर। अब दूसरे यस साइड पे सर। जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन, सबसे पहले इसको 2 कर लेते हैं, 3 अपॉन। एक मिनट एक मिनट, ये क्या दिया हुआ है, 1/100, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 200, 2 प्लस यस सर। 2 हो जाएगा, 1 ठीक है ना, दैट इज 2 प्लस 2 सर। यस सर। यस सर, 2 प्लस 2 4/200। 4 अपॉन 200 ठीक है, अब क्या हो इक्वल्स टू जाएगा, 4/r। आर कितना हो जाएगा बोलो, r को सर 200 अपॉन 4/4, 4 into 4। देखो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ हाँ सॉरी, क्लियर है, 4 and 4 कैंसिल हो गए। यस सर। क्लियर है बच्चा? ठीक, यस सर। क्लास, थैंक यू बच्चा, गुड गुड बच्चा। अच्छा क्लास, ये सबको क्लियर है क्या? अगर है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए एवरीवन। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड। यस बच्चा लोग, ओके गुड, आई थिंक कार्तिकेय सिंह इज क्लियर टू हिम, महविश को क्लियर है, कुशल को क्लियर है, तेजस, वीरज, दिशा, कार्तिकेय, ग्रेट। तो अगर बच्चा लोग ये आपको क्लियर है, ठीक है, और ऐसा ही अब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है कमिंग नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है, और वो तभी बनेंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो इस वीक जो भी खाली समय है घर पर, उसका यूटिलाइजेशन करो और एकदम जी तोड़ मेहनत करो, ठीक है। जो इंसान मेहनत करता है उसी के जीवन में, याद रखो, सफलता आती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। गॉड का ग्रेस तो साथ दे रहा है, लेकिन मेहनत करते करते साथ देता है, ठीक है। तो अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है, कीप डूइंग हार्ड वर्क। लेट अस मीट नेक्स्ट क्लास अगेन एवरीवन, राइट, दैट इज टुमारो, राइट। एंड आप लोग चाहो तो कल ना भी मिल सकते हैं, बट देन आई विल वांट कि कल मिलते हैं, राइट। एंड छोटी सी क्लास होगी, हम लोग उसमें स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और पैरेलैक्स एरर के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक मेथड अगर जरूरत हो आप लोगों को। तो एनसीईआरटी से ये पढ़ लेना जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, राइट, अगर आपकी बुक में दिया है, और अगर आप लोगों के पास स्कूल के प्रैक्टिकल बुक्स हैं, राइट, तो उसको पढ़ लेना, उससे काफी आसानी होगी समझाने में मुझे। एंड लेट अस मीट टुमारो, राइट, एंड कंटिन्यू विद दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू क्लास।